હા બોલ. 5 મિનિટ વી વેટ, બધા જોઈન થાય એટલી વાર. 2 મિનિટ જોઈન થયા બધા. આવી ગયા બધા, 35 જણ આવી ગયા. ડોન્ટ વેટ. आपको जीतू भाई दिख रहे हैं? તું બોલવાનું શરૂ કર. जीतू भाई को प्लीज मैं वेलकम करती हूँ. आपका उनका इंट्रोडक्शन तो दे दिया सबको. जीतू भाई તમારું फेस फोकस करो, फोटो पासे लाओ. હવે ઓકે હા હા ઓકે. ચાલશે. આજે हाँ ગણપતિ प्लीज બાપા બની हिंदी. ગયા છો. जीतू भाई प्लीज आपको हिंदी में बोलना है. अरे मार दिया यार मेरे को, बाबा गुजराती दो ना. राष्ट्र भाषा प्लीज चालू करिए. પછી બહુ आपका તકલીફ इंट्रोडक्शन હશે. मैंने दे दिया है. રેડી? યસ. રામ વાલિયો કરીને એક ડાકુ હતો. પ્લીઝ હા પ્લીઝ એલાઉ મી ઇન ગુજરાત. વાલિયો કરીને ડાકુ હતો એક, અને બધાને ગામને લૂંટતો હતો, બધા કુટુંબને ખેદાન મેદાન કરતો હતો. એમાં એને એક સાધુ મળી ગયા, અને સાધુ મળ્યા અને સાધુએ કીધું કે તું આ બધું કરે છે એ તારા પાપના ભાગીદાર તારા ઘરના છે, ઘરવાળા છે? તો એને ઘરે જઈને પૂછ્યું અને એકદમ એનામાં બદલાવ આવી ગયો. ઘરવાળાએ કીધું અમારું કામ નથી, પાપ તારે અમને રોટલા ખવડાવવાના છે, તું ગમે તે પણ આ પાપ કરીને લાવે છે એ ખોટું છે, બધાને લૂંટીને લાવે છે એમ. પછી એનામાં એક બદલાવ આવી ગયો અને એને રામાયણ લખી. તમે સમજ્યા કે? અને એકદમ સારું જીવન વિતાવા લાગ્યો. એવી જ રીતે હું બી બહુ કંટાળી ગયો હતો લાઈફ થી, અને એક દિવસ બસ સવારના નીકળી ગયો જૂ ઉપર, અને મારી મુલાકાત હરીશ મોદી હારે થઈ. અને હરીશ મોદીએ મને શું કહેવાય જૂ લાફિંગ ક્લબ નો મેમ્બર બનાવી દીધો. શરૂઆતમાં તો કઈ હતું જ નહીં, પછી જેમ જેમ મેમ્બર વધ્યા એમ જરા ચાર્જીસ ને બધું શરૂ થયું. ત્યારે હું મેમ્બર બન્યો. પછી મારામાં શું ટેલેન્ટ છે એ હરેશભાઈને જ ખબર. મેં એકવાર આસ્તેથી કીધું હરેશભાઈ મારે જરા આવી રીતે મને બહુ શોખ છે, મને ખબર નહીં, અને સડનલી બધાની વચ્ચે જીતુભાઈ ઉભા થાઓ, જીતુભાઈ તમને શોખ છે ને જોક કહેવાનો, તમે જોક કહો. અને ત્યારથી મારી જિંદગી આખી રંગીન બની ગઈ. તમને કહી દઉં, મેં એક ગીત બી બનાવ્યું છે, તમને ભવિષ્યમાં સંભળાવીશ મોદી માટે. અને મોદી ઇઝ એ મોટિવેશન પર્સન, તમને કહી દઉં. અને પછી તો આપણું શું ચાલ્યું, બધાને જોક ગમવા લાગ્યા, ગીતો ગમવા લાગ્યા, વાર્તા ગમવા લાગી. અને છેલ્લે તમે જોયું ને હમણાં મારું નાટક બધાએ જોયું. તમે સમજ્યા કે નહીં? આજે તમે માનશો નહીં, મારી પાસે 16 જણનું લિસ્ટ છે, 15-16 જણ. જીતુભાઈ તમે નાટક કરો તો મને લેજો. બધાના શોખ છે ને સોડા વોટરની જેમ બાટલીમાં બંધ છે. જેવું તમે બાટલીનું બુચ ખોલો ને બહાર આવે એમ એટલા બધા મેમ્બર મારી પાસે છે. અને તમને એક ખાસ વાત કહી દઉં કે આ નાટક મોદી સાહેબે જોયું હમણાં બીજી વાર. અને અમારા બેને કઈ ફોન તો અમારા ચાલતા જ હોય મોદી સાહેબના મારા. મને કે જીતુભાઈ અમે તમને છોડશું નહીં, તમે જ્યાં સુધી જીવો ને ત્યાં સુધી તમારે નાટક બનાવવાના છે. વિચાર કરો, એક બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ જિંદગીમાંથી મારી જિંદગી આખી ઇસ્ટમેન કલર બનાવી. જેમ વાલિયો ડાકુ વાલ્મીકી બની ગયો એમ મારી લાઈફમાં બી બધું થોડું આમ તકલીફ હતી, બધું ગમગીન ને, પણ આ મોટિવેશન મને મોદી આપે. સમજ્યા કે? ધીસ ઇઝ ધ ચમત્કાર ઓફ માય લાઈફ. અને પછી તો દોસ્તારો ઘણા મળ્યા, આ પિંકી મળી, બધા એવા મસ્કરી બી કરે. સમજ્યા કે નહીં? હવે આપણે કોઈ હારે વાત કરતા હોય તો એ જીતુભાઈ કા કુછ ખીચડી પકડા હે, બોલો. પછી ઓલા પ્રવીણભાઈ મહેતા, સમજ્યા ને? જીતુભાઈ તમે એકલા આવો છો એ સારું નથી લાગતું. આ બધા જે દોસ્તારોના ડાયલોગ આજે બી કાનમાં ગુંજે છે. અને જિંદગીમાં તમારે ખરેખર આનંદ કરવો હોય તો જોઈન ધ જેએલસી એન્ડ મેક ધ ફ્રેન્ડ્સ. ફ્રેન્ડ્સ હોવા બહુ જરૂરી છે. એકલતાનું કોઈ ઔષધ શોધાય તો ઠીક છે, એકલતાનું કોઈ ઔષધ શોધાય તો ઠીક છે, બાકી મિત્રતા જેવો કોઈ મલમ નથી. તમે સમજ્યા કે નહીં? એટલા બધા ફ્રેન્ડ્સ મને મળ્યા, એટલી બધી મને મજા આવે છે. હું તમને કહું હવે એમ થાય છે કે હવે જીવન હવે શરૂ થયું છે, જીવન જીવવાની હવે મજા આવે છે. એટલે એક મોટિવેશન પર્સન તમારી પાસે હોવો જોઈએ, આટલા મિત્રો હોવા જોઈએ, જસવંતભાઈ જેવા દોસ્તાર હોવા જોઈએ, પિંકી જેવા મિત્રો હોવા જોઈએ.
તમે સમજ્યા કે પૂછ્યા વગર જીતુભાઈ તમારે તો બોલવાનું જ છે. અરે મારી માસી મને તૈયારી તો કરવા દે. બહુ મજા આવી, બહુ મજા આવી. અને આઈ લવ ધીસ પ્રોગ્રામ. અને આજે પિંકી ને નવા નવા આઈડિયા આવે છે એના માટે પિંકી તને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને જેએલસી ની જય હો. મારી 3 મિનિટ પૂરી થાય. थैंक यू जीतू भाई. अने खाली आपको अभी सागरिका के जैसे थोड़ा हिंदी बोलना हाँ कर अभी अभी लीजिए मैं तो सबके लिए अच्छा है, क्योंकि हम लोग के ग्रुप में सब बहुत हिंदी वाले भी है, गुजराती वाले भी है, तो सबको समझना पड़ता है. तो हाँ, जरूर जरा जरूर कोशिश करेंगे. तो अभी जरा यस लॉकडाउन है तो सीख पाएंगे. पर आपने जो बोला बहुत ही अच्छा बोला कि सबके जीवन में एक कल्याण मित्र होना चाहिए. राइट कल्याण राइट मित्र जो है कि जो अपने सही राह दिखाए और जो अपने को पहचानता है इन एंड आउट, कि जो हम लोग से खुद वो हमको ज्यादा जानता है, उसको कल्याण मित्र बोलते हैं. गलत होता तो गलत बोलेगा, सही होता तो सही बोलेगा. तो उस हिसाब से बहुत ही अच्छा आपने बोला जीतू भाई. थैंक यू वेरी मच. और मैं आशा थैंक यू करती पिंकी. हूँ कि आगे भी आप आगे प्रोग्राम हिंदी में करते आगे हिंदी रहेंगे. में करूंगा. और मुझे भूलना मत अभी नेक्स्ट टाइम लेने के लिए कोई प्रोग्राम में. जरूर 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 जरूर. धन्यवाद. अभी मैं आई थिंक ज्योति बहन आ गई है, ज्योति भाविशी, उनको बुलाऊंगी. ज्योति बहन तो अपने जैसे जोत जलाते हैं सब जगह, एंड शी इज वेरी धर्मिष्ठ. एंड वो इतनी धर्म करती है तो कोई उनके मुख से देखे तो मालूम भी नहीं पड़ेगा. एंड शी इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड. वो कितने कितने चीज करती है, क्या करती है उनको मालूम, बट जो भी करती है इतनी उल्लास से करती है. और उनका फेस का जो रेडियंट है वो आप देखो, शांत मुख देखो, तब आप मालूम पड़ेंगे. ज्योति बहन नमस्ते, प्रणाम. सातामा. हेलो, देवगुरु बसाए सातामा. हाँ बोलिए. मेरे जेल से मित्र आप सबको प्रणाम. मोदी जी, बिंदु जी, पिंकी जी, आप सबको वेरी वेरी थैंक्स, बिकॉज आज आपने मुझे चांस दिया है कि मैं कुछ कहूँ. जैसे सबने बताया कि उन सबकी लाइफ में कुछ न कुछ मिरेकल हुआ है, वैसे ही मेरी लाइफ में भी ये रियल स्टोरी है और मिरेकल हुआ है. इसे आप मिरेकल समझो, कोई चमत्कार समझो या श्रद्धा समझो, व्हाटएवर जो भी, लेकिन जो भी हुआ है वो सही हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है. मैं आपको बताऊं कि हम लोग आज से करीब 15-16 साल से भी ज्यादा टाइम हुआ होगा, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तभी हम लोग गुजरात में गए थे और शंखेश्वर यात्रा के लिए जा रहे थे. तो पहले मेरे बहन ने संन्यास लिया है, तो महाराज पाटन में ठहरे थे, तो हम वंदन करने वहां गए. वंदन करके निकले. महाराज साहब ने बताया कि 14 अमावस्या की रात है, बहुत अंधेरा है और गुजरात में काफी सालों से बारिश नहीं हुई है, तो यहाँ लूटपाट बहुत होती है. आपको अगर निकलना है गाड़ी लेके तो आप अभी निकल जाओ, नहीं तो फिर आपको रात यहाँ रहना पड़ेगा, रास्ते में बहुत प्रॉब्लम आएगी. तो हमने बोला कि नहीं, हमें नेक्स्ट डे तो दादा की पूजा करनी है, तो हम लोग जा रहे हैं. हम सब लोग तैयार हुए, मेरी पूरी फैमिली साथ में थी. हम लोग पाटन से निकले. फिर ये लोग को तभी तो मैं चौबियार भी नहीं करती थी, आज बहुत साल के पहले की बात थी. तो रास्ते में सबको भूख लगी थी तो खाना खाने बैठे और फिर हम लोग वहां से निकले शंखेश्वर के लिए. अभी जैसे हम पाटन की बाहर गए, इतना अंधेरा था, अमावस्या की रात थी, इतना अंधेरा था, हमारी गाड़ी जा रही थी. ड्राइवर पता नहीं क्या कर रहा था, गाड़ी इधर उधर हो रही थी और रोड से उतर के कोई खेत में चली जाए, फिर वापस वो मेहनत करके ऐसा करके वापस रोड पे लाए गाड़ी और आगे चलाए, थोड़ी आगे जाए, फिर वापस वो नीचे रोड से उतर जाए और खेत में चली जाए. ऐसा एक बार नहीं, 5-6 बार हुआ. हम सब लोग को डर लगने लगा कि क्या हो रहा है अपने साथ. सबने सोचा कि क्या करे बच्चों को. मेरे 3 बच्चे थे, मेरा देवर था, मेरा मिस्टर था और मेरी बहन के 2 बच्चे थे. और तभी तो एम्बेसडर टैक्सी चलती थी, तो टैक्सी में आगे मेरे देवर और मेरे मिस्टर
और मैं दोनों की गोद में 2-2 बच्चे थे और हम और 3 बच्चे और हम लोग पीछे थे। तो गाड़ी तो जगह गाड़ी में बिल्कुल नहीं थी और इतने कमरे की आवाज, रास्ते में डरावनी आवाज आ रही थी, अंधारा था, बिल्कुल कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं। उतने में एक आदमी आया जिसके हाथ में बहुत बड़ी डांग थी और वो देसी जैसे पटेल लोग कणपा रबारी लोग कपड़ा पहनते ना, वैसा कपड़ा उसने पहना था और उसके हाथ में बड़ी डांग थी। वो आया, आके ड्राइवर को बोला कहाँ जाना है। तो हम लोगों को तो सबको बहुत डर लग रहा था कि क्या हो जाएगा। तो उसने बोला शंखेश्वर जाना है। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, दरवाजा उसने खोल दिया अपने आप ही, दरवाजा खोला और ड्राइवर की बाजू की सीट में आके बैठ गया। अभी गाड़ी में जगह ही नहीं थी बिल्कुल, और कभी कोई ड्राइवर की बाजू में तो राइट साइड में कोई बिठाता नहीं है, लेकिन वो ड्राइवर की बाजू की सीट में आके बैठ गया। मेरे तो पता नहीं मेरी धड़कन ही बढ़ गई थी, मैं इतना घबरा रही थी। आगे मेरे मिस्टर और ये सब थे, सब चुप थे। मैं बोली कोई बोलते क्यों नहीं है, इसने जगह ले ली और आप कोई बोलते नहीं हो। तो फिर मैंने इनको पीछे से हाथ करके बोला कि जरा क्या करे, डर लग रहा है। तो मुझे बोले कि आप सब शंखेश्वर पार्श्वनाथ का जाप करो, अभी देखो वो उतरने वाला नहीं है। तो वो हम सब लोग हाथ जोड़ के सब ने एक साथ में चालू कर दिया, ओम ह्रीम श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः, ओम ह्रीम श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। सब बोलने लग गए। इतने में पता नहीं सबकी आंखें बंद हो गई, सब सो गए। और जब हमारी आंखें खुली तो हमने देखा, तो हम शंखेश्वर में हमारी धर्मशाला के पास, अभी जैसे हम जागे, आंख खुली, तो ड्राइवर को मैंने पूछा कि वो आदमी कहाँ गया। ड्राइवर बोलता है पता नहीं। मैं बोली आप तो गाड़ी चला रहे थे, आपके बाजू में दरवाजा खुला होगा तो आपको पता नहीं है। बोलते नहीं नहीं, हमें तो कोई पता ही नहीं है कहाँ गया वो आदमी। अरे कहाँ उतरा, किधर गया, कब उसने दरवाजा खोला, कुछ पता नहीं। और हम लोग फटाफट, क्या हो गया हमारे साथ, ये दादा नक्की दादा ही आए। तो हमारे में ऐसे भी सब बोलते कि शंखेश्वर पार्श्वनाथ दादा जब भी कोई रास्ता भूलता है तो अपने अधिष्ठायक देव को भेजते हैं रास्ता दिखाने के लिए। तो मैंने बोला कि नक्की वो ही है, हमारे पास अधिष्ठायक देव आए और हमने तो पहचाना भी नहीं, हम तो घबरा गए और दरवाजा खोल के सब सामान निकालने लगे। मैं तो सीधी दौड़ के भागी दादा के दरबार में, और वहां जाके देखा तो मंदिर तो मांगलिक हो गया था। और मैं बाहर ही बाहर शंखेश्वर पार्श्वनाथ दादा जाप करते करते इतना नाची हूँ कि दादा आज तेरी कृपा हमारे पे बनी, और हम तो कुछ पहचान ही नहीं सके, हमें कुछ पता ही नहीं चला। वो टाइम मेरी खुशी जो थी, रियल में मुझे ऐसा लगता था कि मैं यहाँ ही गिर के बस भगवान के चरणों में बस मेरे आंसू से पक्षाल कर दूं। बस रियल में मेरी लाइफ में ये जो प्रसंग था वो इतना अभी तक याद है, हर बच्चे को याद है, हमें भी याद है। फिर हमने महाराज साहब को बोला, जब भी मिले तभी तो मोबाइल वगैरह कुछ था नहीं, तो जब भी मिले तभी बोले, तो वो बोले कि हमारे अधिष्ठायक देव ऐसे सहाय करने के लिए आते ही है। और ये प्रसंग मैं भूल नहीं सकती हूँ, और मैं आज का दिन भी नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि पिंकी ने मुझे ये चांस दिया कि मैं कुछ बताऊं, मेरे दिल में जो घटना घटी है उसे किसी को बताऊं। और आज उसकी कृपा से मैं जो भी हूँ बस वही हूँ। और आज मैं कितने सालों से, उतना करीब 40 साल से तो मैं उनका अट्ठम कर रही हूँ। हर एक उसके जन्म कल्याण पे मैं वहां जाती हूँ और 3 दिन का उपवास करती हूँ, मौन रहती हूँ और उपवास करती हूँ। ये सब उनकी कृपा है। और आज मुझे जेल से मिले, आप सब जैसे दोस्त मिले, ये भी उनकी ही कृपा है। थैंक यू पिंकी जी, थैंक यू मोदी जी, बिंदु जी। थैंक यू ज्योति बहन, आपने बहुत ही सही कहा। मेरी जिंदगी में भी ऐसे बहुत आए प्रसंग। मैं आज तो समय नहीं है, जब नेक्स्ट टाइम होगा मैं जरूर बोलेंगी। आपने जो बोला वो सच है। भगवान जो अपने दिल से हम लोग उसको याद करते हैं ना कोई रूप में तो हम लोग को राह दिखाई देता है, पर हम लोग पहचान नहीं पाते हैं। वो बाद में मालूम पड़ता है, पर हम लोग को हमारे मंजिल तक ले जाता है। और उसकी छत्र छाया है वो मैं भी मानती हूँ। और आप भी इतना तप करते हैं तो बहुत ही बड़ी बात है। देव कृपा की कृपा है आप पर कि आप जब भी कुछ करते हो तो आपके मुंह पे भी नहीं शक्ल आता है क्या करते हो। तो मैं कहती हूँ गॉड ब्लेस यू, और हमेशा आप आगे ऐसे बढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच ज्योति बहन। હવે મિસ્ટર ભાવેશી, आप उनके हस्बैंड हो, पर वो साइलेंट टाइप है, पर हमेशा उनके सपोर्ट बिना ज्योति बहन आज जो भी कुछ कर रही है कुछ नहीं कर पाती। उनका साइलेंट सपोर्ट है,
वो उनको एनकरेज करते हैं, उनके बाधा में कभी बीच में नहीं आते। तो आई वुड सजेस्ट मिस्टर भावेशी, जरा आप आगे आइए और जरा आप बोलिए। बिंदु, हाँ बोल, नाम कौन है? ज्योति बेन ना हस्बैंड मिस्टर भावेशी ने स्पॉटलाइट कर प्लीज। थैंक यू। एक मिनिट। हाँ वो स्पॉटलाइट कर रही हूँ। आई थिंक सबको मजा आ रहा होगा ये प्रोग्राम में। ये जरा प्रोग्राम हटके है, तो सब हटके ही सब कुछ सुनने का है, मजा लेने का है। यस, बोलो। जेल से फ्रेंड्स। हेलो, हम्म, मैं स्वागत है तमारू। हाँ भाई बोलिए। जेल से फ्रेंड प्रणाम। मैं भूपेंद्र बारिशी। मेरे जीवन का सबसे रोमांचक प्रसंग है। सबको पहले मैं जेलसी में मेंबर बनकर जो खुशी मिला है उसका मुझे गर्व है। मेरे जीवन दरमियान मैंने आज तक कभी भी कोई जगह पर स्टेज पर भाग लिया नहीं है। रोमांचक वाली बात यही है कि बिंदु जी का आग्रह से मेरे चांसी महबूबा वो मेरी और एक लड़कियों को देखा तो ऐसा लगा दोनों सामने एक्टिंग करके डांस किया था। वो मुझे खुद को भी यकीन नहीं आता। जो काम कोई ना कर सके वो बिंदु जी के कहने से और मुझे नचाया और मुझे नाचना पड़ा। ये मेरे लिए जलसे का प्रेम है और जिसका यकीन ना आए वैसी हकीकत है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। थैंक्स मोदी जी, और आज पिंकी जी ने पिंकी जी, मोदी जी और आज बिंदु जी। पिंकी जी ने मुझसे बुलाया, कभी वो किसी से बोले नहीं है। आज पहली बार पिंकी जी ने बुलाया। वो आज बोले ज्योति बहन उनको बोलने दे रही है, नहीं तो बोलने को चांस कहाँ देती है। ज्योति बेन very तुमको proud बोलने of you भी दे रही भाई है, कि તમે नाचने આટલા भी બોલ્યા। दे रही है। पिंकी हाँ नाचा। बोलने भी दे रही है, नाचने भी दे रही है। तो अब तो मजा ही मजा है भूपेंद्र भाई को। थैंक यू बिंदु जी, थैंक यू। हम लोग के साथ रहिए तो हमेशा खुश रहेंगे। और ज्योति बहन भी आपका सपोर्ट करते हैं, और मैं तो चाहूंगी आगे आप और भी पार्ट लीजिए सब में। इसलिए तो मैं ऐसा प्रोग्राम्स करती हूँ कि जो नहीं बोलते हैं, जो कुछ नहीं करते हैं, वो लोग सब आगे आए। इसलिए मैं हमेशा कुछ ऐसा कुछ करती हूँ कि सबको सपोर्ट मिले, सब लोग को मतलब हिम्मत मिले कुछ बोलने पिंकी की, जी, कुछ करने की। पिंकी जी वो कल भी ना बोल रहे थे कि मैं नहीं बोलूंगा। मैं बोली नहीं, पिंकी ने बोला है कि आपको तो कुछ भी बोलो, लेकिन बोलना तो पड़ेगा ही, खाली 1 मुझे मिनट के अपने लिए आप पर बोलो। विश्वास है ना, मुझे विश्वास था ईमेल से। मेरे को जिसके ऊपर कॉन्फिडेंस होता है ना, मेरे को मालूम है वो बोलेगा बोलेगा बोलेगा, 100% बोलेगा। यस, थैंक यू थैंक यू। मालूम ही पड़ जाता है। थैंक यू सो मच, आप लोग ने इतना समय निकाल कर हम लोग के साथ बातचीत किया। थैंक यू सो मच। अभी हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि मोदी भाई के गार्डन में तो और बहुत सारे फूल है। और आगे जाने के बाद हम लोग अभी आते हैं, हमारे नए एक मेंबर है, उनका नाम है शशिकला उपुरानी है। वो अभी तो बैंगलोर शिफ्ट हो गई है। उनका भी हिंदी इंग्लिश वो साउथ इंडियन है, एंड शी इज ऑल्सो ओल्ड मेंबर। और बिंदु शशिकला हाँ छे। हाँ, જો ના છે નહીં શશિકલા, નથી, નામ નથી આવતું। शशिकला इफ योर नेम हाथ ऊपर करो प्लीज। તો બીજું नाम बोली ले ત્યાં સુધી। अच्छा आगे चलते हैं, तो फिर हमारे और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं। वहाँ नीला मेहता है। नीला मेहता जी इज अ वेरी एक्टिव एंड वेरी स्पोर्टिंग वुमन। वो बहुत ही चीज में उत्साही है, सब में पार्ट लेना चाहती है, एंड हम लोग के साथ ऐसे हिल मिल जुल गई है एकदम। उनका नाम है नीला मेहता। હા नीला એક मेहता મિનિટ, हता। હા છે એ અલકા સાથે છે ને, અલકાના हाँ, આઈડીમાં છે। अलका ने भी साथे होता। यस, बोलो।
સૌથી પહેલા તો બિંદુબેન हिंदी हिंदी या हिंदी हिंदी पिंकी बेन के पास हिंदी बोलना जरूरी है। हाँ, सबसे अच्छा पिंकी, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया है कि जो दिल में आए वो बोल सकते। ऐसा मौका फिर कभी मिलेगा, है ना? कि ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा हम मेरे जैसा, तो अच्छी बात है। मेरे बिंदु जैसा बेन, ऐसा मोदी- नहीं कोई मिलेगा। या राइट, बिंदु बेन, मोदी साहेब, सबके सब मेंबर लोग, सबको मेरी सबको सब भाई बहन सबको मेरा ज्यादा करके प्रणाम। सबसे पहले मेरे को तो साइकिलिंग चलाना, गाड़ी चलाना, ऐसा मेरे को बहुत शौक था। अगर गरबा खेलो वही अपने को अच्छा लगता है। लेकिन आज से 10-15 साल पहले मैं साइकिल चलाते चलाते गिर गई। पिंकी बेन के जैसे मेरा हाथ हो गया था। मजबूत अभी है ना तेरा हाथ, ऐसा हाथ हो तभी गया भी था। देखो, मैं प्रोग्राम भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। यस यस, तो अभी जो कुछ, यस राइट, तो मेरा भी ऐसा हाथ हो गया था। फिर कुछ नहीं, अपने को बोलते ही ना कि भगवान पे ज्यादा श्रद्धा रखो, एक्सरसाइज करने का, डॉक्टर का भी सहारा लेने का, सब किया। फिर भगवान अपना ऊपर वाला है ना, अपने को सहाय कर ही देता है। अपना हाथ भी अच्छा किया और पैर भी अच्छा किया, वो तो चलता है। और ऐसे में चलते चलते अपने को ऐसा गरबा खेलो, कुछ भी करो तो अपने को बहुत आनंद आता है। अभी अपने को लगता है कि जो जू पे गया तो मोदी साहब मिले, बिंदु बेन ने, सब लोग मिले, एक्सरसाइज करो सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन किधर से किधर अपने को भगवान के न कुछ अलग अलग रूप से मिल जाते, तो अपनी लाइफ भी सुधर जाती है। और अभी 50-60 के बाद अपने को जो एंजॉय करने का है वो मिल सकता है। कुछ भी कपड़े पहनो, कुछ भी घूमो, किधर भी जाओ, कुछ भी खाना पीना सब। और जॉइंट फैमिली में बहुत आनंद आता है, क्योंकि मेरे पास तो मेरी सास भी है, बहू भी है और मैं भी बीच में वाली हूँ, इसलिए आनंद ही आनंद रहता है। और वो आनंद लूटने का तो किसी को ही मौका मिलता है, सबको नहीं मिलता है। लेकिन मेरा ये लाइफ बहुत अच्छा जाता है। और जब भी से ये बिंदु बहन के साथ मिला, मोदी साहब के साथ आ गई, तभी से मेरे को अच्छा बहुत लगता है। संडे हम मिलते थे। इनके बाद जब भी अपने को लॉकडाउन से सब घर में रहने का आया, तो डॉक्टर सादरिका बेन ने जो डांस करने को शुरू किया ना, तो मैं सोच रही थी कि होएगा कि नहीं होएगा, लेकिन मेरा हाथ भी ऐसा सपोर्ट होने लगा, पैर भी लगा। तो मैं तो बोलती हूँ, जो कुछ होएगा ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये अपना घर ही समझ लेने का। जो मोदी साहब बोलता है कि प्लेटफॉर्म है, नो, अपना ही घर है, अपना जो छोटा परिवार है ना, वो बहुत इधर से अपने को बहुत सीखने को मिलता है। और अच्छे ही सादरिका बेन जो स्टोरी बोलते हैं वो भी अपने को मिलता है। और जैसे पिंकी जैसी अपनी फ्रेंड हो जाती है तो फिर बोलने की क्या बात रहती है। कभी भी बोलो, चेहरा स्माइलिंग फेस, हंसते रहो और हंसाते रहो, वही मेरे के लिए बहुत अच्छा है। और मैं तो ईश्वर को प्रार्थना करती हूँ कि मेरा हाथ भी अच्छा हो गया, पैर भी थोड़ा अच्छा हो गया। तो सुबह सादरिका बेन जो कराती है ना, तो उसमें भी बहुत आनंद आता है। तो इसके लिए तो मैं बोलती हूँ कि आगे जाके अपने अभी सीनियर सिटीजन को क्या करने का, इतना आनंद मिलता है, घर में बैठ के वो तैयार भोजन मिलता है ना, ऐसा लगता है। तो वही आनंद मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छा है पिंकी, आपने जो आज का जो प्रोग्राम और आज का जो किया और मेरा नाम ले लिया तूने, तो बहुत आनंद आया, बहुत बहुत खुश हो गई हूँ। धन्यवाद पिंकी बेन जी, सबको धन्यवाद। बिंदु बेन, मोदी साहब, બેનના ઘરે 2 ભાખરી વધારે ખાજે. थैंक यू हाँ। नीला बहन, हाँ, डॉक्टर थैंक यू नीला बहन, डॉक्टर आपने पीछे बहुत बैठ के बोल रहे हैं, बोलो। थैंक यू नीला बहन, आपने बहुत ही अच्छी बात बोली। यही टाइम है एंजॉय करने का, मस्ती मौज मजा, जैसे मैं बोलती हूँ, हमेशा हंसते रहो और हंसते हर रहो। पल जियो, क्यों नहीं। जब तक जान है सब कुछ है। कुछ भी बिंदास। पहनना करना, जो करना कर लो। और हम लोग के जेएलसी में तो हम लोग सब कुछ करते हैं, उसका कोई सवाल ही उठता नहीं है। और थैंक यू वेरी मच। और मैं फिर से कहूंगी कि जो सब ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं बोलूंगी इसका पार्ट 2, पार्ट 3, 4 को भी हम लोग करेंगे।
प्लीज आप लोग अपना नाम मुझे फोन करके भेजिए, क्योंकि शायद कोई रह गया हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मेरा एक ओनली लेफ्ट हैंड इज वर्किंग और मैं जरा नहीं जमता है, मैं राइटी हूँ, तो मैं किसी का नाम अगर रह गया हो तो आई एम वेरी सॉरी। तो प्लीज आप लोग मुझे नेक्स्ट टाइम अपना है ना फोन करके बोलिए कि मुझे पार्ट लेना है, बट अगेन रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज आप लोग सब आगे आइएगा। अभी मोदी काका के गार्डन में तो बहुत सारे फूल है, अभी जो आने वाले हैं उनको तो आप हंसते हंसते मिसेस हंसी बोल सकते हो, क्योंकि वो लक्ष्मण कारिया की वाइफ गीता है, जिसके ऊपर वो हाथ रख के हंसिया ही हंसता हंसता रहते हैं। तो गीता कालरा ने स्पॉटलाइट कर दे प्लीज बिंदु। थैंक Yes, यू Geeta. बिंदु जी, पिंकी जी, मोदी जी, unmute कर रही हूँ, और पूरे जेएलसी फैमिली को मेरा प्रणाम। अभी पिंकी जी ने हमें मौका दिया है कुछ हमारे लाइफ का ऐसे अनुभव बताए कि जिसमें से हम बाहर निकले और खुश है आज उस चीज में। तो मैं जब मेरा बेटा 2 बरस का था और मैं प्रेग्नेंट थी, तो हम लोग का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। तो उसमें एक्सीडेंट इतनी बुरी तरह से हो गया कि मेरे हस्बैंड का फ्रैक्चर हो गया, मेरी जेठानी के हड्डी टूट गई, सबका, दूसरी जेठानी का भी पैर टूट गया, और मेरा जो लड़का 2 बरस का था वो मेरे हाथ में था, उसका पूरा मुंह फट गया आगे से। तो ऐसे बुरी तरह से हो गया। तो उसे जब एक्सीडेंट हो गया तो उस बच्चे को तो मेरे कौन उठा के गया मुझे पता भी नहीं चला, कौन उठा के गया, सब हम इधर उधर हो गए, और एक बच्चा पेट में था, मैं प्रेग्नेंट थी। तो काफी ऐसे बहुत हम लोग घबरा गए, काफी टाइम समय के बाद तो मेरा बड़ा बच्चा कौन ले गया हमको तो पता भी नहीं चला। उससे 4 घंटे के बाद कोई किसी ने इन्फॉर्म किया कि ये बच्चा हॉस्पिटल में है आपका। तो वो वहां से मिला मेरा बच्चा, और तभी, और भगवान की दया से तभी तो बहुत बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया, सब बहुत हालत सबकी खराब थी, सब हॉस्पिटलाइज हो गए थे। लेकिन बच्चा, बड़ा बच्चा भी जल्दी ठीक हो गया, और जो पेट में था वो भी एकदम सही सलामत था, मतलब हम सब अच्छे से ठीक हो गए। तो ये भगवान की कुदरत है कि हम सब ठीक हो गए अच्छे से, आज सब आपके सामने सब हंसते हैं, खुशी से मजा करते हैं। आज दोनों बच्चों की शादी हो गई, उनके भी बच्चे हो गए, सब सुखी है पूरा परिवार। मतलब ये बड़ों की आशीर्वाद है, भगवान है, किसी न किसी की ब्लेसिंग से हम लोग सब बाहर निकल आए, नहीं तो ये बहुत टफ टाइम हम लोगों के लिए हो गया कि हम लोग कैसे हो गए। तो ये वो टाइम मेरे लिए बहुत ऐसे था, और जब ये बच्चा पेट में था वो भी ऐसे था कि उसको दिखाने के लिए भी डॉक्टर को टाइम नहीं था हमारे पास, कि सब इतने बुरी तरह से थे, लेकिन वो भी, उसको भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो भी ठीक था। तो ये हम लोग कभी ये बात भूल नहीं सकते, इसके लिए भगवान को उठते बैठते धन्यवाद करते हैं, शुक्राना मानते भगवान का हम लोग के, और अच्छे से हम लोग की जिंदगी आज है, हम बहुत सुखी है। और जेएलसी ने तो हमें वैसे भी सुखी किया है, बहुत खुशी और होती है। और मेरे हस्बैंड तो मेरे हस्बैंड की एक चीज मैं बताना जरूर चाहूंगी आपको। वो मेरे हस्बैंड है ना, एक्चुअली डांस बिल्कुल नहीं करते थे और फोटो तो बिल्कुल नहीं निकालते थे। तो ये 2012 की बात मैं आपको बता रही हूँ। ये 2012 में हमारे फैमिली में फंक्शन था एक, तो मेरे जेठ के घर में, तो ये सडनली स्टेज पे प्रोग्राम था, सडनली चले गए स्टेज पे डांस करने लगे बदतमीज के गाने पे। तो मैं तो सरप्राइज हो गई, कभी मैंने लाइफ में देखा नहीं मेरे हस्बैंड को डांस करते हुए, और किसी ने भी नहीं देखा था फैमिली में। तो ऐसे एक दूसरे को सब कान में बोल रहे थे, अरे सुनो तो सही, कार्या जी ने कुछ ड्रिंक्स तो नहीं किया है आज। तो ऐसे सब बोलने लगे कि कुछ गड़बड़ है आज तो पक्का है इसका। लेकिन बाद में मुझे मालूम पड़ा उसको सडनली ये शौक आ गया डांस करने का। तो हम, मेरे लिए ये मिरेकल ही है मेरे लिए लाइफ में, क्योंकि मैं तो बचपन से ही डांस करती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड कभी नहीं आगे आते थे, तो मेरे लिए ये एक मिरेकल है। और दूसरा, जेएलसी में आने के बाद फोटो खिंचाने की तो कभी नहीं होते थे मेरे साथ, कोई फोटो ही नहीं खिंचाने की, लेकिन जेएलसी में जब आए तो इतना क्रेज हो गया, फोटो 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 जो फोटो खिंचाएगा घुस जाएगा, जो फोटो खिंचाएगा घुस जाएगा। तो ये जादू तो जेएलसी में आके ही हुआ है,
फोटो का तो उनका तो ये 2 चीजें मेरे लाइफ में, ये भी मिरेकल हो गया। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं मेरे लाइफ में, लेकिन भगवान का उठते बैठते धन्यवाद, और आप सब लोगों की आशीर्वाद है, हम सब अच्छे से परिवार में खुश है। आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू। अभी थैंक यू। गीता के ऊपर हाथ रख के मैं बोलती हूँ, गीता जी, सबसे पहले तो सबके पेट में ही बच्चा होता है और कहीं नहीं होता है। वो भी मतलब एकदम ऐसे हालत हो गई ना कि ऐसा कि वो भी ये उसका तो भी कुछ खाली हंसने की बात है खाली। हाँ, बस बट भगवान इसी को मिरेकल बोलते हैं। और मुझे यही इतनी हाँ, बड़े इसी को accident मिरेकल में- बोलते हैं, अद्भुत चीज बोलते हैं, भगवान का करिश्मा बोलते हैं। इसलिए हाँ। मैं ये प्रोग्राम कर रही थी, नहीं तो हम लोग को मालूम ही नहीं पड़ता है ना। और आदमी लोग बिलीव भी नहीं करते हैं जब तक Yes. अपना एक्सपीरियंस नहीं अपने- बताओ। हाँ। इसलिए मैंने खास ये टॉपिक रखा कि सब लोग, बहुत जने बहुत अचकाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो ऐसे में प्लेटफॉर्म मिले तो कुछ अपना पर्सनल बोल सके। आज आप देखोगे हर एक जन ने जो बात की है, इट इज मोर और लेस लाइक मिरेकल ओनली। भगवान जैसा कुछ था। अभी ज्योति बहन को देख, ज्योति बाविशी का लाइफ देख लीजिए, सबका। अभी ज्योति बाला की लड़की का देख लीजिए, भगवान है और उसकी ब्लेसिंग्स है और हमारे अच्छे कर्म है जो हम लोग को ये सब बचाता है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि अच्छे कर्म करते जाओ। गीता जी, आपने बहुत ही अच्छा बोला। और अभी मैं लाफिंग बुद्धा को बुलाना चाहूंगी, जो आई थिंक आपके बाजू में ही बैठे हैं। मैं तो उनको लाफिंग बुद्धा ही बोलती हूँ, क्योंकि मुझे तो उनको देख के बड़ा मजा आता है, डांस करने का भी। और मैंने तो हमेशा उनको बोला, मेरे साथ एक डांस करो ना, मेरे साथ एक डांस करो ना। और वो बोलते हैं हाँ मैं करूंगा। आप लोग ने सबने समझ गए होंगे मैं किनको बुलाना चाहती हूँ अभी। मिस्टर लक्ष्मण जी, प्लीज आइए। लाफिंग बुद्धा, पहले एक बार खुद जोर से हंस लीजिए। थैंक यू पिंकी जी, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू सागरिका जी, थैंक यू बिंदु जी। आप लोग ने हम लोग को प्लेटफॉर्म दिया है बात करने की। अभी मेरे कल तो ऐसा हुआ, ये बैंक मैंने पढ़ाई किया, पढ़ाई नहीं करा था, लेकिन भाई मेरे अमेरिका में बोला पढ़ाई करो फिर बिजनेस करो, तो पढ़ाई किया तो फिर मैंने बैंक ज्वाइन किया। तो इधर पिताजी मेरे को बोलते हैं क्या है, मेरा नाम खराब करता है, बैंक में गया नौकरी करता है अपना बिजनेस छोड़ के नहीं। तो मैंने बोला मैं करूंगा बिजनेस, लेकिन बहुत जाने मेरे को अलग चाहिए। तो फिर बात करके उन लोग ने बोला बैंक से छोड़ दो, मैं छोड़ा नहीं, छुट्टी लिया। तो फिर मेरे को बोला कि अभी करने का है, तो मेरे लेकिन बना नहीं उनको अलग करके मेरे को बात, तो मैं वापस बैंक में आया। लेकिन मैं सोच के बैठा था भगवान के मेरे को बिजनेस करने का है कैसा भी। तो फिर बैंक में रहते हुए मैंने अपना धीरे धीरे बिजनेस चालू किया। 4 जन गाड़ी में बैठते ऐसा रेंट पे लेके, रेंट पे बैंक से भाग के उधर जाता था, सुबह से रात तक बिजी रहता था ऐसा ही। धीरे धीरे ऐसा मेरा बढ़ते गया धंधा, भगवान की दया से सब अच्छा हुआ। और मैंने अपना बैंक भी पूरी की और बिजनेस भी किया। आज भी बिजनेस करता हूँ मैं। ये भगवान का सब चमत्कार है, कैसा मेरे को आया हिम्मत की बस करने का है। और शादी के पहले मैंने अपना दुकान चालू कर दिया था रेंट पे भी कैसा भी, लेकिन बिजनेस चालू कर दिया था, ये जो मेरा था फिक्स मेरा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू लक्ष्मण जी, आप जहाँ जाते हो हंसी फैलाते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। और हमेशा Thank you, ऐसे thank you. रहिएगा, हंसते रहिएगा। वही अपनी जिंदगी में सब कुछ इम्पोर्टेंट है। પિંકી હજી કેટલા મેમ્બર બાકી છે? હજી ઘણા છે તો કઈ નહીં, નહીં થાય તો નેક્સ્ટ ટાઈમ લઈ લઈશું. હા એટલે હવે શું, હજી બે એટલે એ જ બાકી છે. પૂછું છું કારણ કે 5 મિનિટમાં બંધ થશે. મિત્રવર છે ને ભાનુબેન છે, 5 મિનિટમાં બંધ થશે એટલે. તો ભાનુબેન ને લઈ લે, મિત્રવર ने नेक्स्ट टाइम ले लेसु। હા ભલે. भानुबेन हमारे बहुत ही एक्टिव मेंबर है हमारे ग्रुप में। वो घर के साथ साथ इतने होशीले हैं कि सब चीज में पार्ट लेते हैं। उनका कभी भी कुछ ना नहीं होता है, कुछ भी बोले थे हाँ आई एम रेडी, वही उनकी क्वालिटी है। और भानुबेन प्लीज आप आ जाओ। सब लोग को ये प्रोग्राम कैसा लगा प्लीज हमको वापस बोलिएगा। वी विल कीप पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया, पार्ट 2 पार्ट 3 सब रखेंगे, तो स्पॉटलाइट કરી લે। સાંભળ પિંકી, સાંભળ, હજી અડધો કલાક લેવું હશે તો લેવાશે, તો હું બધાને કહું પાછા આવી જાય।
ઓકે તારી ચોઈસ છે તને ફાવે हाँ તો तो બધાને ભાનુબેન તમે પછી બોલો, બધા वापस आ जाओ, मैं बंद कर रही हूँ आईडी, आप सब लोग वापस आ जाओ, आधा सब घंटा लोग चलेगा। प्लीज वापस ज्वाइन होइए। बिंदु जी फिर से लिंक ले रही है। थैंक यू सो मच, ठीक है, प्लीज वापस ज्वाइन आ जाओ अगेन। सब।